ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 1 ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਵਟ ਇਜ਼ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮਸ। ਕਿ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਮਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ। देखो, ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਵੈਨ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮ ਏ, ਫਾਰਮ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਮਲਗਾਮੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖ ਦੂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਸ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦ ਓਲਡ ਫਾਰਮ ਲੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਸੈਪਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮ ਏ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੂਗੀ ਨਿਊ ਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਰਮਸ ਨੇ, ਫਰਮ ਏ ਜੋ ਅਮਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਮ ਬੀ ਜੋ ਬਿਮਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੂਗੇ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਨਾਓ ਦ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਰਮ ਏ, ਜੋ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਰਮ ਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਰਮ ਬੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੌਣ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਤੇ ਫਰਮ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਫਰਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫਰਮ ਬਣ ਜੂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਫਰਮਸ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਰਮ ਬਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਅ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗੇ, ਯੂਜਲੀ ਬਿਕਮ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਫਾਰਮ। एग्जाम्पल इन डेली लाइफ, इसी जो एग्जाम्पल समझो, मान लो दो छोटी छोटी बेकरीज ने, एक बेकरी है स्वीट ट्रीट्स, एक हैगी है केक हाउस, जिन्हों ने ज्वाइन होकर टुगैदर ये डिसाइड किया कि आप एक वड्डी बेकरी या बड़ा बिजनेस स्टार्ट करांगे जिहदा नाम की रखांगे सुपर बेकर्स। हुण ए और बी की होगी पुरानी फॉर्म, सुपर बेकर की होएगी नवी फॉर्म जो इन्हां दोनों ने अमलगामेट होकर बनाई है। ठीक है, टू ओल्ड बिजनेसिस मर्ज, ये दोवें इकट्ठे हो जाओगे तो नवी बिजनेस बन जूगी, नवी फॉर्म बन जूगी, लार्जर बिजनेस बन जाएगा, वो हो जाएगा साडा अमलगामेशन। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਮਰਜਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਜਰ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ ਮਰਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਰਜਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। मान लो वही एग्जाम्पल मान लेंगे आप, ए फॉर्म सीगी, ठीक है, दूसरी सीगी साढ़े को बी फॉर्म। हुण मर्जर का मतलब की है, आ जो ए फॉर्म है ये पूरे तरीके दे नाल बी दे विच मर्ज हो जाएगी, बस इस तो इलावा होर कोई कंपनी फॉर्म नहीं होएगी, होर कोई फॉर्म नहीं होएगी, नवी फॉर्म क्रिएट नहीं होएगी। एक फॉर्म दूजी फॉर्म दे विच पूरे तरीके दे नाल अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जो फॉर्म अब्जॉर्ब हुई वो तो खत्म हो जाएगी, बट जी पुरानी है वो वर्किंग दे विच ही रहेगी, बी फॉर्म वर्किंग दे विच ही रहेगी।
ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, वन फॉर्म कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है, वो चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होएगी, बट जी अदर है जो एब्जॉर्ब हुई है दूसरी फॉर्म के विच वो ख़त्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। द कंटिन्यूइंग फॉर्म टेक्स ओवर, जो फॉर्म हम कंटिन्यू कर रही है, इत्थे आप एग्जाम्पल लिया बी फॉर्म कंटिन्यू कर रही है, तो बी जड़े है वो ए दे सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी नू टेक ओवर करेगी। एग्जाम्पल दे विच भी यही चीज़ लिखी है, इफ एक्स लिमिटेड मर्जिज विद वाई लिमिटेड एंड आफ्टर द प्रोसैस वाई लिमिटेड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है, वो कंटिन्यू ही करती रहेगी, वो लगातार चलती रहेगी, बट जी एक्स लिमिटेड है जो वाई दे विच मर्ज हुई है, एक्स लिमिटेड है जो वाई दे विच मर्ज हुई है, वो क्लोज हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड मर्जर बिकॉज नो न्यू फॉर्म इज़ फॉर्म। हुण तुसी कीवर्ड की याद रखना है, मर्जर दे विच कोई भी न्यू फॉर्म है जो हो फॉर्म नहीं हो रही, पुरानी फॉर्म्स ही है, बस एक फॉर्म है जी वो डिजोल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जी दूसरी फॉर्म है वो कंटिन्यू करती रहेगी, तो जी फॉर्म खत्म हुई वो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी नू वही पुरानी फॉर्म टेक ओवर कर लेगी। ओनली वन ओल्ड फॉर्म सर्वाइव्स, जी एक फॉर्म रहेगी वो सर्वाइव करेगी, दूसरी जी है वो बंद हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स अमलगामेशन दे विच याद रखना, दोनों फॉर्म्स खत्म हो जांदियां ने, एक नवी फॉर्म स्टार्ट होंदी है, पर मर्जर दे विच एक फॉर्म खत्म होंदी है, दूजी फॉर्म चलती ही रहती है। नोट, मर्जर इज़ अ टाइप ऑफ अमलगामेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मर्जर और अमलगामेशन कैन नू अलग अलग ने, बट अमलगामेशन का एक टाइप ही है मर्जर। जो आप अमलगामेशन के मैथड्स पढ़ांगे वो दो मैथड्स है, मर्जर वाला ते परचेज कंसीडरेशन वाला, तो मर्जर अमलगामेशन का टाइप ही है। अगर मैं थोनों वैन डायग्राम के नाल समझावां, ठीक है, आ पूरा की है अमलगामेशन है, ये अंदर छोटा जा हिस्सा है जो आंदा है मर्जर, ठीक है। अमलगामेशन एक वाइडर टर्म है, मर्जर वो अंदर एक छोटी जी नैरो टर्म है जो वह ही की बन जाता है, टाइप बन जाता है। नैक्सट आ जाओ, मैथड्स एंड अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन। मीनिंग समझो, when two or more firms or companies combine together, the way in which their assets and liabilities and reserves are recorded in the books, जिस तरीके दे नाल उन्हां दी assets and liabilities and reserves ਨੂੰ रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है, न्यू फर्म, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡਸ ਆਫ ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ए और बी दो फर्म ਸੀਗੀਆਂ, ए फर्म, ठीक है, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल बी फर्म। इन्हों ने की किया कि आप एक नवी फर्म स्टार्ट करांगे, आप एक दूसरे विच अमालगामेट हो जावांगे, आप एक अपनी कंपनी का नाम रखांगे ए बी एंड कंपनी, ठीक है। सेम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लै रहे हैं आप। तो हुण आ न्यू फर्म जिहड़ी बनी है, जिस तरीके दे नाल पुरानी फर्म्स दे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नू टेक ओवर करेगी, जिस मैथड के अकॉर्डिंग करेगी, उन्होंने आप मैथड्स या फिर अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन बोल देवांगे, ठीक है। मैं स्क्रीन है जो क्लीयर कर देनी है, तुसीं अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। नैक्सट आ जाओ, हुण तुसीं इहदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है ये चीज़ कि अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन या फिर मैथड्स ऑफ अमलगामेशन दे विच किहड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ਇਹਦੇ अंदर दो तरीके दसे गए हैं कि अमलगामेशन दो तरीक़े दे नाल किया जा सकता है। पहला तरीका है नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, दूसरा तरीका है नेचर ऑफ परचेज। हुण मर्जर देखो, मर्जर एक उहदी टाइप ही है और उहदा मैथड बन जाएगा। एग्जाम्पल समझो हुण इन्हां दा, इफ फर्म ए एंड बी ज्वाइन टुगैदर एंड कंटिन्यू एज वन सिंगल फर्म। हुण फर्म ए है, फर्म बी है, ये दोनों इकट्ठे होंगे हैं तो ये डिसाइड करते हैं आप एक सिंगल फर्म की तरह ही काम कराएं। नो वन इज़ बाइंग द अदर, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को खरीद नहीं रहा या कोई भी फर्म दूसरी फर्म को खरीद नहीं रही। ये केड़ी अमलगामेशन है, ये मर्जर टाइप अमलगामेशन है कि दोनों मर्ज हो गए, एक दूजे विच अब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। बट इफ फर्म एक्स बाइज फर्म वाइज बिजनेस, बट अगर फर्म एक्स है जो खरीद लेंदी है वाई का बिजनेस, उन्होंने आप नेचर ऑफ परचेज वाला अमलगामेशन बोलांगे, ठीक है। इनू आपां डिटेल दे विच करना है दोनों मैथड्स नू, इन्हां दे विच प्रोविजनस है कुछ किस तरीके दे नाल एसेट्स नू टेक ओवर किया जाएगा, ये भी अगे दो टाइप्स ने, दो तरीके ने, ठीक है। ये सारा आपां डिटेल दे विच करांगे अज दी क्लास दे विच बेसिक। हुण अगे देखो, तुहानूं पता होना चाहिए मर्जर और परचेज की है। वैन डायग्राम नाल अगर मैं समझावां, आ पूरा दा पूरा सर्कल की है, अमलगामेशन है। ये अंदर मर्जर एक टाइप है, ये अंदर साडा परचेज वाला एक टाइप है, ठीक है। ये दोनों वो मैथड्स बन जाते हैं, बट अमलगामेशन एक वाइडर टर्म है, ठीक है। सो ये सी अज दी बेसिक क्लास साडी अमलगामेशन दी। बट ये नाल नाल मैं थोड़े लिए मैनू दूसरी PDF ओपन करनी पेगी। हर क्लास के एंड ते मैं एक
या दो टर्म्स दसूँगी जो थोड़े पेपर लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग दी। सो मैं अपनी दूसरी PDF ओपन करती हाँ तो वो विच वो बेसिक टर्म्स है जिन्होंने असी कवर करना। ये है साडी बेसिक टर्म्स वाली क्लास, ठीक है, जो थोड़े एग्जाम लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनू आपां हर क्लास के एंड दे विच 5 मिनट या 10 मिनट दे विच करांगे। रोज़ 1-2 टर्म्स नू खत्म करने की कोशिश करांगे, ठीक है। फंड्स की है, फंड का मतलब की अकाउंट्स दे विच तां बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते फंड्स नू लैके विद वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा ये मिसटेक करते हुए, तो तुसी ये मिसटेक नहीं करनी। फंड का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स, बिजनेस के जिन्ने भी करंट एसेट्स ने वो सारे दे सारे फंड्स ने। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are expected to be converted into cash or sold or consumed within the 1 year or within the normal operating cycle of the business whichever is longer। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫੰਡ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन मिल सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। दीज आर शॉर्ट टर्म्स और याद रखोगे करंट एसेट्स की ने शॉर्ट टर्म्स ने विद इन द 1 ईयर या उस तो भी घट वाले। दैट हेल्प अ बिजनेस टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसिस एंड ऑब्लीगेशन। जो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसिस नू मीट करने वास्ते हुंदे ने वो हुंदे साडे करंट एसेट। थोड़े जे एग्जांपल्स है जो तुसी अपने दिमाग दे विच बिठाने हैं। कैश इन हैंड साडा करंट एसेट है, कैश एट बैंक साडा करंट एसेट है, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स की जगह पर अकाउंट्स रिसीवेबल भी लिखा हो सकता है, स्टॉक एंड इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसिस का मतलब क्या है, वो एक्सपेंसिस जो असी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो विद इन 1 ईयर वाली इन्वेस्टमेंट्स है। एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम जो मैनू अर्नड हो चुकी है, नॉट येट रिसीव्ड जो मैनू हजे रिसीव नहीं हुई। तो लिस्ट है करंट एसेट्स की जो तुसी अपने दिमाग दे विच फिट कर लो, ठीक है। हुण इहदे फीचर्स की ने कि इनू ईजली आपां कन्वर्ट कर सकते हैं कैश दे विच। ये यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट टर्म फाइनैशियल नीड्स नू फुलफिल करने वास्ते। लाइफ स्पैन इज़ जनरली लैस दैन 1 ईयर। इन्हां दा जो लाइफ स्पैन है वो लैस दैन 1 ईयर हुंदा है। हुण आ जाओ यूज़ ऑफ फंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हुण यूज़ ऑफ फंड्स का मतलब की है, वेयर एंड हाउ द मनी ऑफ द बिजनेस इज स्पेंड। यूज़ ऑफ फंड का मतलब की है कि बिजनेस का पैसा कित्थे और किवें यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, स्पेंड किया जा रहा है, उन्होंने आप बोल देंगे यूज़ ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होंगे कितों वो पैसा आ रहा है। यूज़ ऑफ फंड का मतलब है कितने वो पैसा जा रहा है, मतलब कितने थोड़ा करंट एसेट्स है जो खर्च हो रहा है। इट शोज़ द परपज़ फॉर विच फंड्स आर यूज्ड, ठीक है। एक ही दसिया कि कितने फंड्स नू यूज़ किया गया है। एग्जाम्पल के विचों ही क्वेश्चंस बनते हैं, तां तुसीं ये ध्यान दे विच रखना। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स नू परचेज किया, तुहानू क्वेश्चन किद्दां दोगे, बहुत सारे ऑप्शनस दे के पहले तुहानू दसोगे। इन्हां दे विचों क्वेश्चन होगा कि नीचे दिते गए ऑप्शनस दे विचों किहड़ा यूज़ ऑफ फंड का ऑप्शन है। उहदे विच इदां दे तुहानू ऑप्शन दोगे, परचेज ऑफ एसेट्स, रीपेइंग लोन, ठीक है। ओड वन आउट करके तुहानू ऑप्शन दे दोगे, तो तुसी आइडेंटिफाई करना है किहड़ा यूज़ ऑफ फंड है। देखो एसेट्स नू परचेज करना, उहदे विच बिजनेस का पैसा स्पेंड होएगा, वो साडा यूज़ ऑफ फंड है। रीपेइंग लोन, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बिजनेस का पैसा जाएगा, मतलब लोन्स ਨੂੰ वापस करना। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, याद रखना वर्किंग कैपिटल का ਵਧਣਾ भी की है यूज़ ऑफ फंड। इंक्रीजिंग तो याद रखना, मैं बार बार इत्थे हाईलाइट कर रही हूँ, इंक्रीजिंग तो तुसी याद रखना है यूज़ ऑफ फंड है। डिक्रीजिंग तो यूज़ ऑफ फंड नहीं है। तुसी समझ लो वर्किंग कैपिटल घट हो रही है, इसका मतलब साडा करंट एसेट जा रहा है, नहीं। इंक्रीज होएगा अगर वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब है साडा फंड यूज हो रहा है। नैक्सट देखो, इन सिंपल वर्ड्स एप्लीकेशन, यूज़ ऑफ फंड का मतलब कि कितने साडा बिजनेस का पैसा है वो यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल आपने रट लो दिमाग दे विच, एसेट्स नू परचेज करना, फिक्सड एसेट्स नू लाइक मशीनरी बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म लोन्स नू पे करना, डिविडेंड्स की पेमेंट करना, करंट एसेट्स का इनक्रीज होना, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी की है साडे यूज़ ऑफ फंड है। आई होप तुहानू अज दी टर्म सारी क्लीयर है कि फंड की है, फंड के यूजेस की होंगे ने, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स की ने। तो डायरैक्ट इत्थों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीचे दिते गए ऑप्शनस के विचों करंट एसेट्स किहड़ा नहीं है, तो तुसीं ध्यान रखना। तो उस तो बाद यूज़ ऑफ फंड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़। सो ये सी अज दी अपनी क्लास, ठीक है। पहला आपां कीता अमलगामेशन की बेसिक क्लास, वो मीनिंग, वो टाइप्स, ठीक है, वो मर्जर्स तो किमें अलग है वो चीज़। तो फिर आप अज अपना किया फंड की एक टर्म खत्म।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜਾਂ 2 ਟਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ। ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਲੈਕਚਰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।